Hello everyone, this is Professor Rita Paude, lecturer at Department of Electronics and Telecommunication, NIT Polytechnic, Nagpur. Today I am going to deliver a lecture on Chapter 3, that is Communication Standards and Protocol. Today's topic of discussion for the lecture 2 is Serial Communication Standards. The course outcome for this course as interpret the communication standards of embedded system. How these communication standards are required to develop the embedded system we will explain here. The chart shows the CO and PO mapping. Here the CO3 regarding to the chapter 3 is getting mapped with the PO2, PO3, 4 at the highest level, while for the PO5, PO8, 9 and 10 it is getting mapped at the medium level, and for the PO6 it is getting mapped at the lowest level. The learning outcome for this course as describe the function of pins of RS-32. After the completion of this course, student will be able to describe the different functions of different pins of RS-232 and what is RS-232. Explain the history of RS-232. Understand the concept of RS-232. In the last lecture, we were studied about different modes of transmission and advantages and disadvantages of modes of transmission. Let's start with the introduction. RS-232, that is the recommended standard 232. This is the topic of this unit. This topic of this lecture is serial communication standard. So RS-32, it is one of the standard recommended standard which is used for the serial communication. It is basically an interface standard. While connecting the two devices and we want to transmit the information from one device to another device, at that time we will connect the two devices by serially by using the RS-232. It is commonly used in computer serial ports. All are aware about these ports. The standard defines the electrical characteristics and the timing of the signal, how the data transmitted, and by using the transmitter, how this data, that original information getting converted into electrical signal, it is doing by means of RS-232. The current version of the standard is TIA. What is its current version? TIA 232F, issued in 1997. This is the current version which we are going to use for the computer. This is the basic diagram of or basic picture of RS-232. Here there are two ports. One is the female pin and the second one is the male pin. What is the history behind the RS-232? RS-232 was first introduced in 1962. When it was introduced, it was firstly introduced in 1962. This is the basic question for the point of interview. For many years, an RS-232 compatible port was a standard feature for serial communication. I already told you that is RS-232, it is a compatible port which is used for the serial communication. The standard continued to be revised. देखो क्या बोला है, ये कंटिन्यू किया गया था टू बी रिवाइज एंड अपडेटेड बाय द इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री अलायंसेस एंड सिंस 1988 बाय द टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री एसोसिएशन. This standard continued to be revised and updated by the Electronic Industries Alliance and since 1988 by the Telecommunication Industry Association. So this is the history behind the RS-232. And the C version which we are going to use for the current scenario, the C revision of the standard was issued in August 1969. From that state to till we are using this RS-232 for the serial communication port. So how it can be defined as a standard. RS-232 device may be classified as data terminal equipment and data communication equipment.
to convert the or to transmit the data from one device to another device serially. At that time we are using the RS-232. क्या यूज़ करते हैं अपन? RS-232. तो देखो इस RS-232 को अगर अपन ने पोर्ट बोला तो उसको टर्मिनल भी बोल सकते हैं, या फिर अगर तुम कम्युनिकेशन कर रहे हो, डेटा ट्रांसमिट कर रहे हो फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर, तो उसको अपन कम्युनिकेशन भी बोल सकते हैं। इसीलिए इसको दो नाम दिए गए, या तो डेटा टर्मिनल इक्विपमेंट या फिर डेटा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट। This defines that each device which wires will be sending and receiving each signal. This defines that each device which wires will be sending and receiving each signal. क्या करता है? जिसके एक एक वायर सिग्नल को सेंड करना और रिसीव करने का काम करता है। That standard it is nothing but the RS-232. Here the DTE refers to terminals and computers that sends the data and receives the data. वहाँ पे अभी DTE कहाँ रेफर किया जाता है? जहाँ दो कंप्यूटर में डेटा आपको सीरियली ट्रांसमिट करना है। एट दैट टाइम वी आर यूजिंग द डेटा टर्मिनल इक्विपमेंट। उसके बाद में डेटा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट। क्या होता है डेटा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट? डेटा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट रिफर्स टू अ कम्युनिकेशन इक्विपमेंट। क्या होता है वो? रेफर्स टू अ कम्युनिकेशन इक्विपमेंट। जैसे मॉडेम हो गया, जहाँ पे आप लोग कम्युनिकेट करना चाहते हो थ्रू द वाईफाई या फिर अलग अलग सिस्टम्स को यूज़ करके अगर आप डेटा ट्रांसमिट कर रहे हो, एट दैट टाइम वी आर यूजिंग द डेटा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट। अगर डिवाइस में ये करना है कम्युनिकेशन तो आप यूज़ करोगे DTE, और अगर आप लोगों को विदाउट इंटरनेट वायरलेस कम्युनिकेशन करना है तो वी आर यूजिंग द DCA। तो दीज आर द टू मेन स्टैंडर्ड्स ऑफ द RS-232। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ RS-232 केबल? अभी देखो कैसे कैसे दिखाई देते हैं। यहाँ पे आपको इमेज में दिखाई देगा। देखो यहाँ पे ये आप लोगों ने सभी ने देखा है, जब भी अपन अगर आप लोगों को एम्बेडेड सिस्टम का प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे होते हैं आप लोग, तो आप लोग डेफिनेटली इस वायर का यूज़ करते हो। ठीक है, तो ये ऐसा है जो सीरियली दोनों कंप्यूटर के साथ अनदर हार्डवेयर सिस्टम को कनेक्ट करता है। दिस इज वन ऑफ द केबल। देखो आप लोग इसको आप बोलोगे RS-32, जो कि आप लोग अलग अलग कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए आप लोग अगर डेटा ट्रांसमिट करते हो तो इसको आप कनेक्ट कर सकते हो। मतलब कोई भी डिवाइस से आप लोग कंप्यूटर में डेटा ट्रांसमिट कर सकते हो, तो ये आप लोग यूज़ कर सकते हो। देन थर्ड देखो ये भी इंटरफेस एडाप्टर है, ये भी आप लोगों को जाना पहचाना है। और दिस इज द, इसमें देखो 2 पॉइंट दिए हैं, ये तो यहाँ पे मेल एंड फीमेल पिन बोथ दिए हैं जिससे आप लोग डेटा ट्रांसमिट कर सकते हो। मतलब एट ए टाइम आप लोग यहाँ पे 2 डिवाइस अटैच करके उससे डेटा अनदर डिवाइस में ट्रांसमिट कर। अभी RS-232 का एप्लीकेशन कहाँ RS-232 यूज होता है? तो देखो ये आपका एम्बेडेड का चिप है। कोई भी हार्डवेयर हो उसको अगर आप लोग आम कंट्रोलर के कोई भी चिप अगर आप यूज़ करते हो तो वहाँ पे आप लोग RS-232 का पोर्ट यूज़ करते हो, जिसको अपन DB9 कनेक्टर भी बोल सकते बेटा। ठीक है, RS-232 को बोल सकते हैं DB9 कनेक्टर। इट इज़ अ 9 पिन पोर्ट। देन उसके बाद में देखो आप लोग अगर कंप्यूटर या फिर कोई भी म्यूजिक सिस्टम है जो वायरलेस है उसको अगर आप लोग कनेक्ट करना चाहते हो तो उसको भी आप लोग यहाँ पे RS-232 से कनेक्ट कर सकते हो। उसके बाद में एक पर्टिकुलर जैसे अलग अलग हार्डवेयर सिस्टम है, हार्डवेयर सिस्टम के डिवाइस को आप लोग अगर कनेक्ट कर रहे हो टू परफॉर्म द फंक्शन या फिर बाय यूजिंग द प्रोग्रामिंग, एट दैट टाइम आप भी ये डिवाइस भी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद में देखो आपके घर में अगर इंटरनेट कनेक्शन है, मॉडेम है, तो मॉडेम को आप लोग देखो एक मॉडेम से वायरलेस आप लोग वायर्ड के थ्रू अगर अलग अलग कम्युनिकेट करना चाहते हो, अलग अलग डिवाइस को कनेक्ट करना चाहते हो, तो एट दैट टाइम वी विल यूज दैट RS-232। देन व्हाट आर द डिफरेंट पिन्स आर फॉर द RS-232? देखो यहाँ पे एक फीमेल पिन होता है, एक मेल पिन होता है। देखो दिस इज अ फीमेल पिन। अभी यहाँ पे देखो क्या होता है, दिस फीमेल पिन को आप लोग देखोगे कि सबसे इम्पोर्टेंट, बहुत सारे पिन है यहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं है, बट आप लोग मोस्टली यूज़ करते हो 9 पिन वाला, जिसको अपन बोलते हैं DB9 कनेक्टर। देखो यहाँ पे अलग अलग पिन दिए हैं, 1 to 13 पहले इसमें दिए है और 14 to 25, मतलब टोटल 25 पिन का ये DB25 है। देखो ये DB25 का मेल है,
सॉरी फीमेल है, जिसमें आप लोगों को अगर आप पिन नंबर को देखोगे तो पिन नंबर 2 से आप लोग डेटा को ट्रांसमिट कर सकते हो, वही आपकी पिन नंबर 3 आपका डेटा रिसीव करेंगी। अभी वो जो डेटा है आपको सेंड करने के लिए रिक्वेस्ट करनी पड़ेंगे, तो उसके लिए अपन पिन नंबर 4 यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद में सेंड हुआ, इसके लिए क्लियर अगर मैसेज देना है तो वी विल यूज़ द पिन नंबर 5 दैट इज डिनोटेड एज द CTS। उसके बाद में डेटा सेट रेडी है, मतलब मुझे डेटा अभी सेंड करना है, इसके लिए आप DSR यूज़ करते हो, जिसमें अपन पिन नंबर 6 को यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद में सिग्नल ग्राउंड अगर आप यूज़ कर रहे हो तो उसमें अपन पिन नंबर 7 को यूज़ करेंगे। डेटा करियर डिटेक्ट अगर आप यूज़ कर रहे हो तो पिन नंबर 8 से अपन डिटेक्ट करेंगे। ट्रांसमिट क्लॉक, रिसीव क्लॉक, दोनों क्लॉक को यूज़ करेंगे पिन नंबर 15 और 17 में। और डेटा टर्मिनल रेडी में यूज़ करेंगे पिन नंबर 20 और ऑक्सिलरी क्लॉक के लिए अपन यूज़ करेंगे पिन नंबर 24। क्लियर एवरीवन? तो दिस इज द DB25 फीमेल पिन which is used as a RS-232 used for the serial communication standard. Clear everyone? Then here the male pin. देखो यहाँ पे मेल पिन आउट है, जिसको अपन बोलते हैं DB9 कनेक्टर। दिखाई दे रहा है आप लोगों को डिफरेंट 9 पिन से। आपको डायग्राम निकालते टाइम पे भी सेम डायग्राम निकालना है, जिसको अपन एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन DB9 कनेक्टर विथ डिफरेंट पिन्स एंड देयर फंक्शन। क्लियर हो रही है? क्वेश्चन आता है ऐसा, जैसे ही क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, आप लोगों को यहाँ पे ऐसा डायग्राम बनाना है। डायग्राम बनाने के बाद अलग अलग पिन्स को वहाँ पे कनेक्ट करना है। क्या करना है? अलग अलग पिन्स को कनेक्ट करना है। देन पिन कैसे वर्क करता है, अभी जैसे मेरे को डेटा कैरियर डेटा को अगर मुझे लेके जाने वाले डेटा को डिटेक्ट करना है, तो एट दैट टाइम आई विल यूज़ द पिन नंबर 1। वही अगर मुझे रिसीव और ट्रांसमिट करना है, तो जैसे अपन फीमेल के लिए यूज़ करते थे, वैसे ही अपन पिन नंबर 2 और 3 के लिए रिसीव एंड ट्रांसमिट के लिए यूज़ करेंगे। उसके बाद में मेरा डेटा का टर्मिनल मतलब रिसीव करने के लिए और ट्रांसमिट करने के लिए रेडी है, ये बताने वाला भी एक सिग्नल होना चाहिए, इसीलिए अपन यूज़ करेंगे क्या? पिन नंबर 4। एक चीज़ आपने हमेशा देखी है कि कोई भी वायरलेस कम्युनिकेशन हो या फिर वायर कम्युनिकेशन हो, ग्राउंड का पिन हमेशा आपको मिलेगा, दैट इज द सिग्नल ग्राउंड, जो कि आप लोगों को मिलेगा पिन नंबर 5 में। उसके बाद में डेटा सेट रेडी, एक डेटा सेट रेडी का है, जिसको अपन बोलेंगे पिन नंबर 6। उसके बाद में एक रिक्वेस्ट करनी है डेटा सेंड करने के लिए, वहाँ पे अपन कनेक्ट करेंगे क्या? RTS। पिन नंबर 8 में अपन क्लियर टू सेंड एंड पिन नंबर 9 के लिए अपन यूज करेंगे रिंग इंडिकेटर। क्लियर एवरीवन? आई होप एवरीवन अंडरस्टैंड अबाउट द RS-232 pins which are used as the male and female pins which are used for the serial communication always, or these are the RS-232 pins. Clear everyone? So this lecture summarizes as in this lecture we have studied about the pin diagram of RS-32. I hope everyone understand how to draw the pin diagram of RS-32 and what are the function of the different pins of RS-232. अंडरस्टैंड द फंक्शन ऑफ पिन्स ऑफ RS-232। सभी को समझ में आया है कि पिन RS-232 के पिन्स का फंक्शन क्या हो। सो thank you so much dear student for listening this lecture. In the next lecture we will study about MAX 232 as a bidirectional converter. Thank you so much.